सो हमारे जो एस्पिरेंट्स अभी बैठे हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मितांश ने 12 बोर्ड्स पे भी ध्यान दिया और आईपी मैट में भी आई एम बैंगलोर को क्रैक किया है। व्हाट वाज योर डेली रूटीन कि कैसे स्कूल्स गए, स्कूल का कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई की एंड आईपी मैट के लिए टाइम निकाला है? आई बिलीव आप आखिरी में अपने आप को बर्डन ना करते हुए, क्योंकि जब वो मार्च अप्रैल का क्रूशियल टाइम है, जब आपकी ये एग्जाम्स बहुत नियर है, बोर्ड एग्जाम्स, बट आईपी मैट के एग्जाम्स भी बहुत पास है, तो यू नीड टू रियलाइज यू कांट गो फॉर कि भाई मैं आखिरी 1-2 महीने में ही बोर्ड एग्जाम को पढ़ूंगा। रादर देन दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ एंड आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए। आपकी जो जर्नी में जिस दिन आपका आई एम बैंगलोर का रिटर्न एग्जामिनेशन है, तो आप उस दिन का फीलिंग बता सकते हो, वो दिन कैसा था आपके लिए? आई एम बैंगलोर का, एज आई सेड, इट वाज अ वेरी चिल फीलिंग बिकॉज मैं ज़्यादा टेंस नहीं था। मेरा था कि भाई दे देते हैं, देख लेंगे यार क्या होगा। एटलीस्ट एग्जाम दिन के दिन अपने स्ट्रेंथ्स पे बिलीव रखे, अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, सो आई बिलीव देन आउटकम गेट्स मच बेटर। From dreams to one of India's most prestigious college, we are bringing you the story behind the success. Welcome to the podcast where we uncover the journey of I Am Bangalore UG program achiever. So we have Mitansh Rajkotia, who scored 99.48 percentile in I Am Bangalore UG program. So first of all, Mitansh, congratulations. How does it feel when you say I am going to I Am Bangalore? Thank you, sir, for inviting me. It feels very proud, very nice, of course, to be a part of the first inaugural cohort of I Am Bangalore's UG program in BSc Honours Data Science. If you would have asked me 6 months prior to this that I'll be going to I Am Bangalore, I would have laughed out because I was not even preparing to give this exam because I thought the fees of the program is very high and so on and so forth. But then I decided, let me at least just give it a try. And just for mere practice for other IPMAT exams, let me just give this exam, and it turned out to be very nice. So your try converted into the I Am Bangalore, right? Yes, I tried converting. I did not, when I was even sitting in the exam room, my thought wasn't that I need to score this much, I need to attempt this, I need to attempt that. My flow was, and my mindset was that I need to give my best and I need to attempt it as nicely as possible. Just like I'm giving a mock. Okay. And Mitash, how does it feel when you saw your selection result, and what was the reaction of your parents? So that was very overwhelming because when I got my results, majority of results were out by then. So when I got my results, I actually got a phone call from I Am Bangalore saying that the waitlist has been cleared and I have been selected in the program. So yes, that was very a very emotional moment for me, and a very overwhelming one as well. I was very excited to be a part of this program after I gave the exam and after I had my results. So I really wanted to join the program, and I was really looking for joining after the program. And hence, when I got my results, it was a very big moment for me. That's nice. So Mitash, when did you started preparing for this IPMAT preparation, and how was your journey during this period? सर मैंने 2024 जब बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हुए थे, तब मेरे पास एक डायरेक्शन नहीं था कि कहाँ पे मुझे प्रिपेयर करना चाहिए. बट देन आई सॉ होर्डिंग ऑफ समथिंग कॉल्ड IPMAT, एंड देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, एंड आई गॉट टू नो दैट IIMs ऑफर एडमिशन आफ्टर 12th. सो माई mindset and my goal was to get into the business line from the very start itself. So I was even considering a drop from schooling itself after 10th standard because I thought I'll just get back to my family business and start expanding it. But then I decided that formal education, especially from an IIM, can really boost my thoughts and my mindset to another level, and my thinking and my network as well. So I decided that at least let me for 2 years prepare sincerely for this exam, and then we'll decide what we have to do. And hence I joined Career Launcher for its 2-year classroom program. Okay, that's fantastic. So आपको पहले से ये था कि मेरे को फैमिली बिजनेस या बिजनेस में ही ज्वाइन करना है? जी. Okay, that's good. So मितांश, आपने ये जो 2 साल की जर्नी थी, तो यू हैड अलॉन्ग विथ योर स्कूलिंग एंड ऑल, उस सब को मैनेज कैसे किया? आईपी मैट के लिए तैयारी कैसे की, और फिर बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कैसे किया? सर मेरे लिए मेजर फोकस वाज आई एम कन्वर्टिंग एनी IIM with the best if possible. I need to give my best in this exam. Board exam is secondary for me. I had this very clear from the very start itself.
इसीलिए मैंने 11th में ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की फॉर कॉमर्स, टू बी ऑनेस्ट। आई स्कोर्ड अराउंड 91% इन क्लास 11। ज्यादा पढ़ाई नहीं की फिर भी 91 11th में, दैट्स फैंटास्टिक, गुड। Sir, I believe commerce का syllabus is not that vast. You can prepare it alongside IPMAT preparation really well. But I think that if you don't commit yourself enough for IPMAT and अब board में बहुत ज़्यादा focus हो जाए ना, तो फिर यहाँ पे बहुत lag होने के chances है, because this is a very fiercely competitive exam with a selection rate of around 1 to 2% at max. And general category के लिए तो और tough हो जाता है। तो आई थिंक दैट यू नीड टू बी वेरी सिंसियर इन योर प्रिपरेशन दिस साइड। फिर आप वहाँ पे कैसे मैनेज कर रहे हैं, दैट्स योर कॉल। आई पर्सनली वेंट टू स्कूल, अलॉन्ग साइड स्कूल आई एक्सप्लोर्ड सम स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एज वेल। तो मैंने वो दोनों को कंबाइन करके ही अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन मैनेज की। ओके, गुड। सो हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर 12th स्टैंडर्ड? सर, इन 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर्ड 96.2% इन CBSE। ओह, दैट्स ग्रेट। सो हमारे जो एस्पिरेंट्स अभी बैठे हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मितांश ने 12 बोर्ड्स पे भी ध्यान दिया और IPMAT में भी IIM बैंगलोर को क्रैक किया है। तो मितांश, ये जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनको डिफ़िकल्टी होती है कि सर बोर्ड्स के साथ हम IPMAT की प्रिपरेशन कैसे करें, तो आप बता सकते हो आपने अपना टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया? व्हाट वाज योर डेली रूटीन, कि कैसे स्कूल्स गए, स्कूल का कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई की एंड IPMAT के लिए टाइम निकाला है? तो सर, मैंने बोर्ड एग्जाम्स की तो प्रिपरेशन धीरे धीरे स्टार्ट कर दी थी। आई बिलीव आप आखिरी में अपने आप को बर्डन ना करते हुए, क्योंकि जब वो मार्च अप्रैल का क्रूशियल टाइम है, जब आपकी ये एग्जाम्स बहुत नियर है, बोर्ड एग्जाम्स, बट IPMAT के एग्जाम्स ही बहुत पास है। तो यू नीड टू रियलाइज यू कांट गो फॉर कि भाई मैं आखिरी 1-2 महीने में ही बोर्ड एग्जाम का पढ़ूंगा। रादर देन दैट यू स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल इटसेल्फ एंड आप थोड़ा थोड़ा रोज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा हर वीक में पढ़िए। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे, और आपकी जैसे कि मेरी स्कूल थी, तो मेरे स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट होते थे, हाफ ईयरली होते थे। तो जैसे जैसे वो सिलेबस आता था तो आपको पढ़ना ही है। तो जैसे जैसे एग्जाम्स आते जाते थे वो सिलेबस कवर होता जाता था। सो आई बिलीव दैट स्ट्रेटेजी इज मच मोर यूजफुल रादर देन गोइंग फॉर कि मैं आखिरी 2 महीने में पढ़ूँ। तो इससे क्या होगा, आप आखिरी 2 महीने में भी IPMAT का पढ़ पाएंगे। मैंने हर महीने 3 से 4 मॉक दिए ही है, वेदर इट बी मार्च, वेदर इट बी फरवरी और वेदर इट बी अप्रैल। तो जो तीनों महीने जहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो मैंने तभी भी हमारे मॉक्स को देना छोड़ा नहीं था, और बोर्ड की एग्जाम के प्रिपरेशन तो साथ साथ में चल ही रही थी। सो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया था, जहाँ पे अपने स्कूल्स की पढ़ाई को और आपके पीरियोडिक जो टेस्ट होते थे और IPMAT के प्रिपरेशन को भी टाइम दिया हुआ है जी। तो अगर हमारा टाइम टेबल प्रॉपर रहा तो हम दोनों चीज़ों पे क्या कर सकते हैं, Yes. फोकस कर सकते हैं। Yes. तो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आप कोई कोकुलर एक्टिविटीज या कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे? यस सर, मुझे मॉडल यूनाइटेड नेशंस, डिबेट्स, ये सब का बहुत इंटरेस्ट है। 12th स्टैंडर्ड में ही, इनफैक्ट 3 months 4 months prior to the IIM Bangalore exam, I was the Secretary General of Delman 7.0, which Great. was Vidarb's biggest MUN of 2025. We had around 1100 plus delegates. So I was a Secretary General of that. I was the overall head of the conference. So I was completely involved in that. But that was my passion. मुझे लगा कि मैं भले ही एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बट मुझे चाहिए कि मैं, ये एक मेरा पैशन है जो मैं नहीं छोड़ना चाहता। दैट वुड एटलीस्ट हेल्प मी इन माई स्टडीज इटसेल्फ। अगर आप बस एक ही चीज़ पे फोकस करो ना, तो एक टाइम आता है जब आपको एक फ्रस्ट्रेशन आने लग जाता है और आप थोड़ा सैचुरेट हो जाते हो अपने प्रिपरेशन में। तो एक ज़रूरी है सर, आपको जो पसंद है आप साथ साथ में वो करते रहिए। वो बोलना सही है कि वो मैनेज होगा नहीं होगा, बट अगर आप अपने प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट हो और आप जो करना चाहते हो उसमें भी कंसिस्टेंट हो, सो आई बिलीव 24 hours a day इज सफिशिएंट कि आप सब चीज़ें टाइमली मैनेज कर सकें। बहुत बढ़िया मितांश, आपने बहुत बढ़िया कहा है कि अगर हमने टाइम टेबल बनाया है तो हम पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी ध्यान से दे सकते हैं। तो मितांश, आपकी जो जर्नी में जिस दिन आपका IIM बैंगलोर का रिटर्न एग्जामिनेशन था, तो आप उस दिन का फीलिंग बता सकते हो, वो दिन कैसा था आपके लिए एंड व्हाट वाज योर इन माइंड जब आप एग्जाम्स के लिए जा रहे थे? तो सर, IIM बैंगलोर का अलग बता दो, बाकी सबका अलग है। IIM बैंगलोर का एज आई सेड इट वाज अ वेरी चिल फीलिंग, बिकॉज मैं ज़्यादा टेंस नहीं था। मेरा था कि भाई दे देते हैं, देख लेंगे यार क्या होगा। आई वॉज नॉट वेरी एक्साइटेड, बट माई माइंड सेट वॉज टू गिव माई 100%, क्योंकि मैंने 3,000 रुपये दिए और मैंने पैसे दिए फीस के, तो मुझे पूरा 100% देकर आना एग्जाम में। बट बाकी एग्जाम में थोड़ा अलग था। तब मेरा क्या, इंदौर में जैसे था, इंदौर इज़ अ वेरी टेंस एग्जाम। ओके।
माय फोकस वॉज कि मुझे ये क्रैक करना है, ये करना है, इतना स्कोर करना है, ये सेक्शन में इतना देना है, ये सेक्शन में इतना स्कोर करना है. तो वो माइंडसेट बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो गया. एंड आई रियलाइज कि वो एग्जाम मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया. आई स्कोर्ड अराउंड 184, बट स्टिल आई थॉट कि मैं और अच्छा कर सकता था. तो आई रियलाइज दैट माइंडसेट इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज यहाँ पे सिलेबस आपने वही है जो आपने 10th तक मेजोरिटी पढ़ रखा है. इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट एंड आप कौन सी ट्रिक और कौन सा अप्रोच फॉलो करते हो वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चंस एंड फोकस एज वेल. सो आई बिलीव माइंडसेट इज अ वेरी क्रूशियल थिंग, जो अगर आप क्रैक करो तो क्रैकिंग द एग्जाम इज वेरी इजी. मितांश ने बिल्कुल सही कहा कि आपका डी डे के दिन आपका माइंडसेट कैसा रहता है और आपका अप्रोच वाइल सॉल्विंग द पेपर वो कैसा रहता है, वो मैटर बहुत करता है. गुड. एंड मितांश, आप बता सकते हो कि आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू ऑफ आई एम बैंगलोर, आपने इस इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे किया और इंटरव्यू में से कौन से क्वेश्चन थे जो आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार सरप्राइजिंग थे या आप थोड़ा सा वहाँ पे अटक गए, ऐसा कुछ था? हाँ, तो सर मैंने बैंगलोर का इंटरव्यू दिया है, रोहतक आई कन्वर्टेड आई एम रोहतक एज वेल, सो उसका भी इंटरव्यू दिया है, अमृतसर का भी इंटरव्यू दिया है. बट टू बी स्पेसिफिक बैंगलोर का अगर मैं बताऊँ तो बैंगलोर में द इंटरव्यू वेंट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे 4-5 हुक पॉइंट्स बोले थे जिससे मुझे क्वेश्चंस पूछे जाए. तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे उससे क्वेश्चंस पूछे जाए और उसी से मुझे क्वेश्चंस पूछे. सो दैट वॉज वेरी नाइस. I definitely got stuck in some moral questions, moral obligation जैसे रहते हो, moral questions. For example, मुझे क्वेश्चन पूछा था, the professor asked me कि आपने मुझे अपने डेलमन रिलेटेड एक्सपीरियंस से पूछा कि आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया. सो एनी मॉरल व्हाट वी से, आपने कोई ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर की जिसमें आपकी मॉरल इंटेग्रिटी क्वेश्चन में आया है, एथिक्स आपके क्वेश्चन में आए. सो आई सेड यस. मेरे एक फ्रेंड था जो who was one of my very good friend, Okay. and he was a part of the secretariat as well in the team, but he was not performing very well. So I had to decide कि मैं इसको कंटिन्यू करने दूँ ऐसे एंड लेट इट जाने दो, या तो फिर मैं उसको एक दूसरे रोल में शिफ्ट करूँ. सो आई डिसाइडेड कि मैं उसको दूसरे रोल में शिफ्ट करूँ एंड अपने जो इवेंट है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ और उसके डेडलाइंस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ. सो देयर वर सच एथिकल क्वेश्चंस. फिर बहुत सारे डेटा साइंस के भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने, जैसे Okay. मुझे स्टैटिस्टिक्स में पूछा था कि सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में मुझे पूछा कि मीन मोड मीडियन ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी है, तो तीनों में फ़र्क क्या है और हम ये तीनों क्यों अलग अलग यूज़ करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे करिकुलम रिलेटेड भी पूछे और मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी पूछे जिसमें मैं इन्वॉल्व था. ओके. एंड व्हाट यू फील, ये जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के, दिस थिंग हेल्प यू इन द इंटरव्यू पार्ट? Yes, definitely. In all the interviews, my extracurriculars, my achievements in debates, in my leadership, and all these events helped a lot. They seemed very intrigued by them, and वो उससे related questions पूछ रहे थे. तो मुझे चाहिए था कि मुझे मैथ्स और academics से questions ना पूछते हुए ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन पूछे. आई वॉज मोर कंफर्टेबल विथ इट. तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट्स है, को करिकुलर अगर आप एक्टिविटीज करते हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज अकॉर्डिंग टू मी इन योर इंटरव्यू एज वेल. सो अ वेरी गुड एडवाइस फ्रॉम मितांश कि अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स, अगर आप एक दो कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं और दैट विल हेल्प यू ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो. ठीक है, गुड. सो कैन यू टेल मी मितांश, व्हाट वाज योर डेली स्टडी रूटीन लुक लाइक? मतलब आपका डेली का शेड्यूल कैसा था? स्कूल, फिर उसके बाद आके कितनी देर पढ़ते थे, फिर आईपी मैट के लिए कितने आवर्स डिवोट करना चाहिए? सर मैंने आर्ट्स वाइज तो डिवाइड नहीं किया है कभी Okay. भी. आई वॉज लाइक कि दिन में ये एक टास्क है. फॉर एग्जाम्पल एल्जेब्रा की ये मॉड्यूल है और उसके ये दोनों एक्सरसाइज है, तो सोने से पहले ये दोनों ख़त्म करनी है. फिर उसको 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर. सेम गोज फॉर बोर्ड प्रिपरेशन. ये टास्क आपके हैंड में होना चाहिए, फिर उसमें कितने आवर लगते हैं वो अपने हाथ में नहीं है. तो आई बिलीव मैंने टास्क एवरीडे टास्क असाइन करता था. सुबह उठता था, ब्रश करते टाइम सोचता था कि आज दिन में ये करना है और रात में सोने से पहले ये ख़त्म होना चाहिए. तो वो रूटीन फॉलो करते हुए मैंने धीरे धीरे कंसिस्टेंटली अपनी प्रिपरेशन की फॉर बोथ बोर्ड्स एंड आईपी मैट. गुड. एंड मितांश, अकॉर्डिंग टू यू, ये जर्नी में, आईपी मैट के जर्नी में, विच सेक्शन वाज द टफेस्ट फॉर यू? मैथ्स, हायर मैथ्स. हाँ. एंड हाउ डिड यू ओवरकम दिस सेक्शन देन?
सर ट्राई तो मैंने पूरा किया ओवरकम करने का, बट आई बिलीव सर एक टाइम आता है, आप ऑफ कोर्स प्रैक्टिस इज अ मस्ट, आप मॉक्स देते रहिए, सब करते रहिए, दैट एवरीवन नोस, बट आई बिलीव अ टाइम कम्स ऑन द डी डे, एंड उससे दिन आप अगर एग्जाम के दिन के पहले तक ट्राई कर रहे हैं वो भी चलेगा, बट एग्जाम के दिन मुझे लगता है आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक के शॉर्ट कमिंग्स होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, बट आपको अगर जो अच्छा लगता है आप उस पर फोकस करें ना, तो भी चीज़ें बहुत बेटर हो सकती है। एक अगर आप एटलीस्ट एग्जाम दिन के दिन अपने स्ट्रेंथ्स पे बिलीव रखें, अपने स्ट्रेंथ्स पे फोकस करें, सो आई बिलीव देन आउटकम गेट्स मच बेटर देन रैदर देन आप अपने वीकनेस पे फोकस करें और उसको ही कंटिन्यूसली इंप्रूव करने की ट्राई करें। तो सो कभी ऐसा हुआ जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे इस रूटीन में कि आपका मॉक टेस्ट का स्कोर लो आया है एंड यू फेल्ट लाइक गिविंग अप, ऐसा आपके जर्नी में कभी हुआ है? सर मैंने स्टार्टिंग में हुआ था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगा कि आई वॉज नॉट गिविंग माई 100%, तो मुझे लगा कि आई नीड टू बी बेटर एट इट, बट वंस आई वॉज गिविंग 100% आई स्टिल रियलाइज कि मॉक्स के रिजल्ट तो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं, कभी थोड़े कम हो जा रहे हैं, कभी स्टैगनेंट हो जा रहे हैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया दैट आई वोंट फोकस ऑन द रिजल्ट मच, मैं एनालिसिस ऑफकोर्स डीपर जाके करूँगा, बट कितना स्कोर आ रहा है उस पर ज़्यादा ना फोकस करते हुए आई विल जस्ट ट्राई टू बी कंसिस्टेंट विथ माई प्रिपरेशन, और जो पॉइंट्स दिख रहे हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली ये चीज़ें नहीं हो रही है सॉल्व, और उसी में मैं वही क्वेश्चंस गलत कर रहा हूँ या वही क्वेश्चंस मिस कर रहा हूँ, तो उसको रेक्टिफाई करना बहुत ज़रूरी है। फिर मॉक्स के स्कोर को अगर आप बहुत दिल पे लगा लो ना सर, तो फिर आपको आगे जाके एग्ज़ाम के दिन भी और थोड़ा मेंटल प्रेशर रहता है कि ये सॉल्व करना है, ये नहीं करना, इतना स्कोर आना चाहिए। तो इट्स बेटर कि आप एफर्ट ओरिएंटेड रहे, आप अपना 100% दे। ये सेक्शंस में ऑफकोर्स आपको गलतियां इंप्रूव करना ज़रूरी है, बट उसके बाद आप एग्ज़ाम के दिन एटीट्यूड ऐसा रखें कि आपको बस 100% देना है, जो स्कोर आएगा वो देख लेंगे। एंड व्हाट यू फील हाउ मॉक्स आर इम्पॉर्टेंट, और उसका एनालिसिस कितना करते थे आप? मॉक्स का सर मैं सारे एनालिसिस करता था, सारे मॉक्स का 2 से 3 घंटा लगता था मुझे एनालाइज करने में। आई यूज टू मेजरली एनालाइज कि मैंने कौन से क्वेश्चंस छोड़े हैं, ये क्वेश्चंस में कौन सा अप्रोच लगाना था जो मुझसे मिस हो गया मॉक देने के टाइम, और जो गलत हुए हैं उसमें क्या गलती की है जो मुझे नेक्स्ट टाइम रेक्टिफाई करनी है। तो यूजुअली वो मेथड्स रहते थे या कोई कॉन्सेप्ट रहते थे जो मैं भूल गया होता था, क्योंकि पढ़ा हुआ सब था एक टाइम बाद। इट्स ऑल अबाउट आपकी रिकॉल वैल्यू कितनी है और आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं ऑन द टाइम व्हेन यू आर गिविंग योर मॉक। ओके गुड। एंड मितांश, हाउ वाज योर पीयर ग्रुप? जब आप क्लासेस जाते थे आईपीएमएट की, वो आपका पीयर ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है या फिर क्या था आपका वो प्रोसेस में? सर आई बिलीव पीयर ग्रुप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट प्लेस ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। मेरा पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, काफ़ी डिसिप्लिन था आई वुड से, सो दैट हेल्प मी अ लॉट। जब मुझे लगता था कि चलो आज रहने देते, कल करेंगे, परसों करेंगे, देन आई यूज्ड टू रियलाइज कि नहीं, मैं देयर इज समवन हु इज ऑलरेडी प्रिपेयरिंग अ लॉट एंड आई नीड टू एटलीस्ट बी हम्बल विथ माई प्रिपरेशन। तो ऑफकोर्स आई बिलीव ऑफलाइन अगर आपका एनवायरनमेंट है, एक क्लासरूम एनवायरनमेंट है, तो आपको कोई भी एग्जाम में वो ऑफलाइन एनवायरनमेंट 100% हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन। वेदर इट्स आपको कुछ सॉल्व करना नहीं जम रहा है, आपको कोई स्टडी एडवाइस चाहिए, आपको साथ में कुछ प्रिपेयर करना है, तो एग्जाम या इंटरव्यू के दिन तक आपको पीयर ग्रुप हेल्प करेगा सर, मेरे हिसाब से। ओके गुड। सो एस्पिरेंट्स, हम यहाँ ये समझ सकते हैं कि मितांश का पीयर ग्रुप अच्छा था, ही गॉट अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट विच हेल्प मी टू कीप ऑलवेज हिम मोटिवेटेड, करेक्ट? करेक्ट। एंड व्हाट वाज योर फैमिली सपोर्ट ड्यूरिंग दिस 2 years? फैमिली सपोर्ट वाज वेरी वेरी गुड। मेरा हाउस का शिफ्टिंग था, जब मेरा बैंगलोर का एग्जाम था उसके एक दिन पहले ही हमारा वास्तु था ऑफ द न्यू हाउस, और हम लोग एक रेंटेड होम पे रह रहे थे फॉर 6-7 months कंटिन्यूसली। तो तभी भी मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर कोई भी शिफ्टिंग का इधर उधर बहुत काम, एक अगर आप घर बना रहे तो घर बनाने के टाइम 1000 काम निकलते रोज, बट मेरे मम्मी पापा ने मेरे ऊपर कुछ भी नहीं आने दिया। दे मैनेज्ड एवरीथिंग बाय देमसेल्व्स एंड डिड नॉट लेट मी फील बर्डन्ड, एंड मैं अपने प्रिपरेशन में ही कंसिस्टेंट रहूँ, उसी पे मेरे पेरेंट्स का फोकस था। So that was very supportive of my parents continuously. Okay, that's fantastic. So मितांश, what was ऐसा कोई डिफिकल्ट फेज आया था ड्यूरिंग दिस 2 years, ठीक है, और उसको आपने ओवरकम कैसे किया डिफिकल्ट फेज को लाइफ के? सर मैं यूजुअली ऐसे 3 फॉर्मूला यूज़ करता हूँ।
which is specialist to the preparation, कि आपको हसल करना है, आपको कंसिस्टेंसी ज़रूरी है और आपका माइंडसेट ज़रूरी है. अगर ये तीनों में से कुछ भी खराब हुआ ना, तो फिर आपका कहीं ना कहीं मोरल कम होगा, स्कोर्स में भी फ़र्क पड़ेगा और प्रिपरेशन में भी फ़र्क पड़ेगा. सो आई बिलीव हसल, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट, दीज थ्री आर क्रूशियल फॉर एनी एग्जामिनेशन. और अगर आपको कभी भी लो लगे, सो आई यूज टू मेडिटेट एवरी डे 10-15 मिनट्स. थोड़ा स्पिरिचुअल भगवान की तरफ मेरा फोकस था कि एटलीस्ट थोड़ा पूजा वूजा करूँ, तो उससे मुझे हेल्प होती थी. थोड़ा मेडिटेशन करता था और माइंडसेट क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मेरी रहती थी. इसीलिए तो वो फोकस उससे जो बीच बीच में हर्डल्स आते हैं, वेदर इट्स योर एग्जाम एंग्जाइटी, रिजल्ट एंग्जाइटी एज वेल, कॉलेज एंग्जाइटी एज वेल, तो जितनी भी एंग्जाइटीज़ है तो ये बहुत छोटी है मेरे हिसाब से. आपको लाइफ में और भी बड़ी बड़ी चीज़ें फेस करनी है, तो यू शुड जस्ट स्टे हैप्पी, stay consistent and keep your mindset effort oriented. Okay, fantastic. So, Mitash, apart from IIM Bangalore, आपके कहाँ के कॉलेज कन्वर्ट हुए? Sir, I converted IIM Ranchi, I converted IIM Kozhikode, I converted IIM Amritsar, I converted IIM Rohtak, and I converted IIM IFT Kakinada. Okay, you have got a huge list. So, बोर्ड्स में भी अच्छा किया मितांश ने और बहुत सारे एम्स को भी कन्वर्ट किया है एंड ही वाज ऑलवेज मोटिवेटेड. सो इससे ये समझ में आता है कि आपके पास अगर एक प्रॉपर टाइम टेबल रहा, फैमिली सपोर्ट रहा और आपका रूटीन सेट रहा, तो आप डेफिनेटली आईपीएमएट को क्रैक कर सकते हैं. इस पूरी जर्नी में व्हाट वाज द रोल कॉल ऑफ द टीचर्स विच टॉट यू? ठीक है, उनका रोल कॉल कैसा रहा, वो आप बता सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में. सर, मेजॉरिटी रोल वाज ऑफ द टीचर्स, of the coaching and the institute, the career launcher, the material, the study material they provide. From the very start itself, 2 साल में कोई भी मुझे प्रॉब्लम आती थी, मैं टीचर्स के पास जाता था, राहुल सर के पास जाता था, आपके पास आता था, और भी जितनी फैकल्टी है उनके पास जाता था. सो दे आर कम्प्लीटली ऑलवेज रेडीली अवेलेबल टू यू. मैंने और कोई प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर ही नहीं किया है, वेदर इट्स गिविंग योर टेस्ट, वेदर इट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड वेदर इट्स रिविजन. मेरा डे वन से बिलीव वॉज दैट दिस इज़ द इंस्टीट्यूट दैट विल हेल्प मी टू क्रैक माई ड्रीम कॉलेज. और वो बहुत ज़रूरी है सर. अगर आप एक बार कंप्लीटली सरेंडर कर दो अपने टीचर्स को और ट्रस्ट करो, तो उससे भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत बूस्ट मिलता है. फिर आप ये जगह से एडवाइस लो, फिर दूसरी जगह से लो, फिर तीसरी जगह से लो. उससे बेटर है आप अच्छे से चूज़ करिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है, और आप एक बार वो चूज कर ले तो कंप्लीटली फिर एंड टू द इंटरव्यू और जब तक आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होता, आप वो कोचिंग पे और वो इंस्टीट्यूट और वो टीचर्स पे अपना ट्रस्ट रखिए. मतलब यू हैव टू बी फोकस ऑन वन थिंग, दैट्स इट, आप ये कहना चाहते हो. ओके, गुड. सो मिताश, नाउ विल हैव सर्टेन रैपिड फायर क्वेश्चन. ठीक है. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन वर्ड फॉर IIM Bangalore. लेगेसी. गुड. व्हाट वाज योर फेवरेट सब्जेक्ट? LRDI. So you were a morning study or night study? Morning study. Mock test or revision? Sir, I believe both go hand in hand. Okay. Rather than going for either, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो मॉक्स अच्छे से नहीं दे पाएंगे. अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो रिविजन का कोई मतलब नहीं है. So I believe it's not a binary answer. We should be consistent in both. Good. So one topic which you never wanted to see in exam? Higher maths. Higher maths, okay. It's ironic because IIM Bangalore का curriculum is very higher maths focus, but it's like मेरे को थोड़ा लगता है कि higher maths में थोड़ा मुझे पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है. कभी कभी थोड़ा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है. And what student आपसे पूछता है, speed or accuracy? Accuracy, sir. Accuracy is very important. Okay, good. And consistency or intelligence? Consistency, sir. Intelligence comes with consistency. Okay, that's fantastic. So today we have मितांश. मितांश, आपने बहुत अच्छा जो आगे IPMAT एस्पिरेंट्स हैं उनको गाइड किया, आपने अपनी जर्नी के बारे में शेयर किया. तो थैंक्स कमिंग फॉर द पॉडकास्ट. Thank you to you, sir. You have been a very big support throughout the journey. From end to end support जो आपने मुझे दिया है. LRDI में आप ही थे मेरे मेंटर, और 45 out of 45 in IIM Bangalore I could score only because of your preparation. Sure. So thank you so much to you and the entire faculty and the back management behind Career Launcher for supporting me in my journey. चलो, थैंक यू सो मच मितांश. Thank you.